Hello everyone. In today's video, I am doing a question bank of the chapter Coordinate Geometry of class 9th. Before I proceed for questions of coordinate geometry, I would like to explain that this horizontal line is called as x-axis. We name it as x dash x, and this vertical line is called y-axis. We name it as y dash. Horizontal line and vertical line, they are meeting at a point that is called origin. This is O, and to the right side of origin the positive numbers are written on x-axis 1 2 3 4 5 at equal distances, and above the x-axis the positive numbers are written along y-axis 1 2 3 4 5, and towards the left side of origin on x-axis negative numbers are written, and below x-axis on y-axis the negative numbers are written like -1 -2 -3 so on. All these numbers are at equal distances from each other. Now when both the axes intersect each other, four quadrants are formed. First quadrant, second, third, fourth quadrant. Now in first quadrant you can see the values of x are positive, the values of y are positive, so we can write here plus comma plus. Means x is also greater than 0 and y is also greater than 0. Means both the values will be positive. Here x-axis is negative, y is positive. So negative comma positive means x is less than 0 but y is greater than 0. Here negative x, negative y means minus minus. So x will also be less than 0 and y will also be less than 0. Here x is positive, y is negative. So plus and minus. X is greater than 0 and y is less than 0. Now before I proceed further, I would like to tell you that the coordinates of origin are 0, 0. Then what is abscissa? The distance of any point from the y-axis is called as abscissa, और abscissa का दूसरा नाम है x coordinate. I repeat, the distance of any point from y-axis is called as abscissa and its other name is abscissa, x coordinate. I will depict here where is abscissa. Suppose I mark any point here and I join it with the help of scale, this, and let this is point P. What are its coordinates? You will say that its distance from y-axis is this. How much? 3. And from x-axis how much is its distance? 1. So we will say that abscissa is 3. So abscissa को क्या बोलते हैं? x coordinate. Means the distance of any point from y-axis is called as abscissa or x coordinate. और simple ordinate क्या होता है? The distance of any point from x axis. तो आप देख सकते हैं इस पॉइंट का डिस्टेंस x axis से कितना है? 1. तो इसको बोलेंगे ऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट. तो ये था एब्सिसा और y, एब्सिसा और x कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट. नाउ लेट्स आंसर दीज क्वेश्चंस. इन विच क्वाड्रेंट विल -2, 5 लाई? तो आप देख सकते हैं इसमें माइनस यहां है, प्लस यहां है. मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में -2, 5 लाई करेगा क्योंकि x इज लेस देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0. What are the coordinates of origin? I have just now told that the coordinates of origin are 0, 0. Means origin के ऊपर abscissa भी 0 है और ordinate भी 0 है.
इन विच क्वाड्रेंट और एक्सिस डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई 4,2, यानी इसमें एब्सिसा भी पॉजिटिव और ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। ऐसा कहां हो रहा था? क्वाड्रेंट 1 में। तो आप इसका आंसर लिखेंगे क्वाड्रेंट 1 और यू कैन राइट फर्स्ट क्वाड्रेंट। एनीवे आंसर कैन बी रिटन 2,-5 एब्सिसा पॉजिटिव ऑर्डिनेट नेगेटिव। ऐसा कहां हो रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आप यहां लिख देंगे क्वाड्रेंट 4। फोर्थ क्वाड्रेंट में एब्सिसा जो है वो पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट जो है वो क्या है? नेगेटिव। नेक्स्ट इज -3,-7 एब्सिसा भी नेगेटिव और ऑर्डिनेट भी नेगेटिव। ऐसा कहां हो रहा है? क्वाड्रेंट 3 में। तो यहां लिख देंगे क्वाड्रेंट 3। नाउ 6,0 आपको ये याद रखना है कि जब भी किसी पॉइंट का ऑर्डिनेट 0 होगा तो वो पॉइंट कहां पर लाई करेगा? एक्स एक्सिस पर। जैसे मैं आपको पूछूं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो आप बोलेंगे 4,0। तो कोई भी ऐसा पॉइंट जिसका ऑर्डिनेट 0 हो, वो पॉइंट जो किसी क्वाड्रेंट में नहीं लाई करता, वो लाई करता है एक्स एक्सिस पर। तो याद रखना है, जब भी किसी पॉइंट का ऑर्डिनेट 0 होगा या वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा तो वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। इसी तरह से जिस पॉइंट का एब्सिसा 0 होगा वो कहां लाई करेगा? जैसे ये पॉइंट है, इसके क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे? 0,3। तो वो पॉइंट लाई करेगा वाई एक्सिस के ऊपर। तो 0,3 कहां पर आएगा? वाई एक्सिस के ऊपर। नाउ इज क्वेश्चन नंबर 4। What is the perpendicular distance of P has coordinate 4,3 from x axis? मैंने आपको अभी डेफिनेशन दी थी कि किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस ऑर्डिनेट होता है। तो इसमें ऑर्डिनेट क्या है? 3 यूनिट्स। 3 यूनिट्स। तो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पी हैज कोऑर्डिनेट 2,7 फ्रॉम वाई एक्सिस। तो आपको एकदम समझ जाना है कि आपसे एब्सिसा के बारे में पूछा गया है। तो यहां पर एब्सिसा क्या होगा? 2 यूनिट्स। तो किसी भी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई एक्सिस से क्या होता है? एब्सिसा। व्हाट इज द एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट इफ इट लाइज ऑन वाई एक्सिस। अगर कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है, जैसे ये है, मान लो ये पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0,4। तो कोई भी पॉइंट जो वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है उसका एब्सिसा हमेशा ही 0 होगा। तो आपका आंसर क्या है इसका? 0। फिर व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच लाइज ऑन एक्स एक्सिस। कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे लाई करे, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 4,0। तो मैं जनरल में लिख दूंगा कि उसके कोऑर्डिनेट x, 0 होंगे। लेकिन उसने आपसे कोऑर्डिनेट्स नहीं पूछे, उसने पूछा है कि व्हाट हियर इन दिस क्वेश्चन व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। तो अब ये भी जो एक पॉइंट लिया वो था 4,0। तो अगर मैं इन जनरल बात करूं तो आप बोलेंगे कि कोई भी ऐसा पॉइंट जो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है उसके जनरल कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो x, 0 होंगे। इसी तरह से व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट विच लाइज ऑन y एक्सिस। तो वो उल्टा हो जाएगा 0, y, क्योंकि अभी अभी एक पॉइंट लिया था ये, तो इसके y एक्सिस पे लाई कर रहा था, इसके कोऑर्डिनेट 0,4 थे। तो इसी तरह से जनरल कोऑर्डिनेट्स इसके क्या आ जाएंगे? 0, y। अगला क्वेश्चन है राइट द पॉइंट मीन्स कोऑर्डिनेट्स where the graph of equation this lies on x axis। जब भी कोई ग्राफ x एक्सिस से कट करेगा, राइट, जब भी कोई पॉइंट x एक्सिस से कट करेगा तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। तो इस क्वेश्चन में जैसे 3x + 9y = 12, so we have to write the coordinates of the point where the graph of the equation is cutting x axis। so x एक्सिस के ऊपर ये देखो, x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो आप क्या करेंगे? पुट y = 0। तो 3x + 0 क्या बनेगा? 12। तो 3x बना 12, x की वैल्यू बनी
12/3 दैट इज 4। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, आप लिखेंगे 4,0। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ 3x plus 9y equal to 12 cuts the x-axis in which coordinate plane does 0,2 lie। तो 0,2 तो नेचुरली जिस पॉइंट का एब्सिसा 0 होता है, राइट, तो ये होगा पॉइंट 0,2 मीन्स इट लाइज ऑन y एक्सिस। नेक्स्ट इज we are given the coordinates of p and q, we are to find abscissa of p minus abscissa of q। तो abscissa of p क्या है, -2, then minus sign, what is abscissa of q, -3, ये ब्रैकेट में आएगा, तो ये बनेगा -2 माइनस इंटू माइनस इन प्रोडक्ट +3, तो 3 - 2 बना 1, तो आंसर क्या है 1। Now question number 12, write the coordinates of point where abscissa is -7 and ordinate is 2। तो ये सिंपल है क्वेश्चन, -7, 2 इज द आंसर। What is the equation of x एक्सिस, x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे y = 0। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो y एक्सिस के ऊपर x 0 होता है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे x = 0। एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ p हैविंग कोऑर्डिनेट -3,8 फ्रॉम y एक्सिस। इसका मतलब आपसे पूछा गया है एब्सिसा, तो आपने इसका आंसर -3 यूनिट्स नहीं लिखना, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आपने लिखना इसका आंसर 3 यूनिट्स। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस इज एब्सिसा एंड एब्सिसा इज 3 units, not -3 units। So in this video I have taken all types of questions which can be asked for 1 mark। Hope you have understood all the question। To get the updates of next more videos posted, do subscribe the channel, keep the notifications on and keep watching, liking the videos and commenting in the comment section। Thank you so much।